ملاحظہ کیجیے منشی پریم چند کی کہانی عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی ہے۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو وہ پڑوس کے گھر سے سوئی تاگا لینے جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، وہ اسے تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ کوئی جلدی سے بیلوں کو ثانی پانی دے رہا ہے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ 3 کوس کا پیدل راستہ، پھر سینکڑوں رشتے قرابت والوں سے ملنا ہے۔ دوپہر سے پہلے لوٹنا غیر ممکن ہے۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے 1 روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ روز عید کا نام رٹتے تھے، آج وہ آ گئی۔ اب جلدی پڑی ہوئی ہے کہ عیدگاہ کیوں نہیں چلتے؟ انہیں گرہستی کی فکروں سے کیا واسطہ؟ سوتوں کے لیے گھر میں دودھ شکر اور میوے ہیں کہ نہیں، ان کی بلا سے وہ کیا جانے ابا کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قائم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ اگر آج چودھری آنکھیں بدل لے تو عید محرم ہو جائے۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بگل اور خدا جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد۔ وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ کیا بیماری تھی، کہتی کس سے، کون سننے والا تھا۔ دل پر جو گزرتی تھی سہتی تھی، اور جب نہ سہا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینی گئی ہیں، اس لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے، اور پھر بچوں کی امید، ان کا تصور تو رائی کا پہاڑ بنا لیتا ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور اماں جان نعمتیں لے کر آئیں گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا، تب دیکھے گا کہ محمود اور محسن، نور اور سمی کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں۔ بدنصیب امینہ اپنی کوٹری میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانہ نہیں ہے۔ آج عابد ہوتا تو کیا اسی طرح عید آتی اور چلی جاتی؟ اس تاریکی اور مایوسی میں وہ ڈوبی جا رہی ہے۔ کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو؟ اس گھر میں اس کا کام نہیں، لیکن حامد، اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب؟ اس کے اندر روشنی ہے، باہر امید۔ مصیبت اپنی ساری قوت کے ساتھ حامد کی مسرت بھری چتون کا خاتمہ کر دے گی۔ حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان 3 کوس چلے گا، پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں گے۔ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سیویاں کون پکائے گا؟ بھوکھا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سیویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے بھی نہیں۔ اس فہیمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے۔ اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی۔ اب تو کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کی جیب میں اور 5 پیسے امینہ کے بٹوے میں۔ یہی تو بساط ہے اور عید کا تہوار، اللہ ہی بیڑا پار کرے گا۔ دھوبن، مہترانی اور نائن سبھی تو آئیں گی، سبھی کو سیویاں چاہیے، اور تھوڑا کسی کو آنکھوں نہیں لگتا۔ کس کس سے منہ چھپائے گی اور منہ کیوں چھپائے؟ سال بھر کا تہوار ہے، زندگی خیریت سے رہے، ان کی تقدیر بھی اس کے ساتھ ہے، بچے کو خدا سلامت رکھے، یہ دن بھی یوں ہی کٹ جائیں گے۔ گاؤں سے میلہ چلا
और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। सब लोग क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो कभी थक सकता है? शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता चार दीवारी बनी है, दरख्तों में आम लगे हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम का निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मोछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़े जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब घर में जादू होता है। सुना है कि वहां मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं, आदमी को बेहोश कर देते हैं, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, मगर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मोछों और दाढ़ी वाले, और मैमन भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकेंगे, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही ना सके, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा पेट पकड़ लें, बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती। हाँ, उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर आता है, जितना माल बचा होता है वो खुद खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नातों को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, और क्या, एक एक का सर आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से लग जाए, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर दूं। मोहसिन, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं पता ना चला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबर दे जाया करते हैं। अब हामिद की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इतनी दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। आगे चले। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं, राइट लेफ्ट फॉर्म फो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने इख्तिलाफ किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं? जी हजरत, यही लोग चोरियां कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं कि जागते रहो जागते रहो। तभी तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू इतने रुपए कहाँ से आते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। खुद ही कहा कि हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन ने उसकी नादानी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है।
थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा सामान जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक दरख्त के नीचे सोए थे, अल्लाह कसम दरख्त के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कुर्स लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद ने पूछा, 150 से ज्यादा होते हैं? कोई बोला, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 तो एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी अतर में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। बच्चों के लिए सारी चीजें अनोखी थीं, जिस चीज की तरफ देखते देखते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर ना होती। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। अचानक ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरी न जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, कई कतारें खड़ी हैं। जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही सिलसिला चलता रहा। कितना बेमिसाल मंजर था, जिसकी हम आहंगी और वुसअत दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा करती है। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, फिर मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गजरिया, राजा और वकील, धोबन, बिश्ती और साधु, वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बहिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मुश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है। मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। नोरे को वकील से प्रेम है, कैसी ज़िहानत है उसके मुंह पर। काला चोगा पहने, नीचे सफेद अचकन, अचकन की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरे या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फजूल से हैं। कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं? मोहसिन कहता है, मेरा बेश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह और शाम। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ाएगा। समी, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चुकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, खासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रोड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लालची नजरों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रोड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को शुबा हुआ कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तबा नहीं है,
लेकिन ये जानकर फिर भी वो उसके पास गया। दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, मैं इसकी होशियारी समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिड़ा चिड़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं, कुछ गिलट और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दस्तपना रखे हुए थे, वो दस्तपना खरीदेगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपना लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा ही देर की तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सके हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपना कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। कितने खुदगरज और लालची हैं। सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूंगा। खाएं मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही चटोरी जबान हो जाएगी। तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा। दादी दस्तपना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपना लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी। सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों को खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जभी तो मोहसिन और महमूद ने मिजाज दिखाए हैं। मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खेलें खिलौने, खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मजाक क्यों बनूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आएंगी ही। फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक एक टोकरी खिलौने दूंगा और ये दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसने लगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना हो तो लो। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियां ना दी। बुलाकर दस्तपना दे दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। जरा सुने कि सब के सब क्या तनकीद करते हैं। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपना लाया है, अहमक, इसका क्या करेगा? हामिद ने दस्तपना जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बहिश्ती जमीन पर गिरा कर देखो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, चाहूं तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हकारत से देखकर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो आरी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी,
ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा दस्तपना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छोड़ चुका था। 10 बज रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी भी। अब दस्तपना नहीं मिल सकता। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं है। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यक व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की कुव्वत है, सियासत की हिम्मत। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। ये फातेह सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चूहे में मुंह छुपाकर लेट जाए, मगर ये चिमटा बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने ईड़ी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा, यह भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। महमूद ने कुमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस वार का जवाब न दे सका। उसने पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी जरा मुकाबला हो जाए, इसकी सूरत देखते ही बच्चा की मां मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और बेइज्जती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक बार फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही। दस्तपना बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने में पड़े रहने की सजा और क्या के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद से जवाब न बन पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा दस्तपना जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। उसके जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सोरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। उसका दस्तपना रुस्तमे हिंद है, उसमें किसी को भी चूचरा की गुंजाइश नहीं। फातेह को मफ्तूहों से वकार और खुशामद का खराज मिलता है, वो हामिद को मिलने लगा। औरों ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों ही में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, वो एक दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्तपना तो फातेह रहेगा हमेशा। सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम चाहो तो हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई एतराज नहीं। दस्तपना बारी बारी मोहसिन, महमूद और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें छिड़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? जो अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर ना हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को यह बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस मसरफ पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर ये कि चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साझी बनाया। उसके दूसरे यार दोस्त मुंह ताकते रह गए। ये उसी चिमटे की करामात थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बहिश्ती उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बहिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे रसीद किए।
میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین یا طاق پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 کھونٹیاں گاڑی گئیں، ان پر چیر کا پرانا پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب راجہ بھوج کی مانند تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ نورے پنکھا لے کر جھلنے لگا۔ عدالتوں میں خس کی ٹٹیاں اور بجلی کے پنکھے رہتے ہیں، کیا یہاں معمولی پنکھا بھی نہ ہو؟ قانون کی گرمی دماغ پر چڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ بانس کا پنکھا آیا اور نورے ہوا کرنے لگا۔ معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب تخت کے نیچے آ رہے اور ان کا جسد خاکی خاک میں مل گیا۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی۔ اب رہے میاں محمود کے سپاہی، اسے چٹپٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا۔ لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی گئی، اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور اپنے دروازے کا چکر لگانے لگے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی چھوٹے سونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے ہیں، مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ بیکار ہو جاتی ہے۔ محمود کو آج معلوم ہوا کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اس کو ایسا مرہم مل گیا ہے کہ جس سے ٹوٹی ٹانگ کو آنن فانن جوڑا جا سکتا ہے۔ صرف گولر کا دودھ چاہیے، گولر کا دودھ آتا ہے، ٹانگ جوڑی جاتی ہے۔ لیکن سپاہی جو ہی کھڑا ہوتا ہے ٹانگ جواب دیتی ہے، آپریشن ناکام ہو جاتا ہے۔ تب محمود اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے۔ اب وہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایک ٹانگ سے تو نہ چل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، اب وہ گوشے میں بیٹھ کر ٹٹی کی آڑ میں شکار کھیلے گا۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ 10 پناہ کہاں ملا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے۔ کتنے پیسے میں؟ 3 پیسے دیے۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی۔ یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا؟ بس 10 پناہ؟ سارے میلے میں تجھے اور چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے خطاوار انداز میں کہا، تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھیں اس لیے میں نے اسے لے لیا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً شفقت میں بدل گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو بیان کی جا سکتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ ناقابل اظہار شفقت تھی، درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جانسوزی ہے۔ بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر؟ وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے رہی۔ امینہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، حامد کے چمٹے سے بھی عجیب۔ بچے حامد نے تو بوڑھے حامد کا پارٹ ادا کیا تھا۔ بڑھیا امینہ بچی امینہ بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعا دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟